Welcome students. Class 11th. See, we already discussed you types of economic activity. First one was business. Second one is profession. I was discussing profession. Okay, so what are the basic features? The profession is a special occupation which involve rendering of personal services by the profession knowledge. Okay, so in profession, the person who is giving the services, he provide the special. It is a special occupation, okay, and he provide the personal services by use of his professional knowledge. It means for business, for profession, the person need special skill or special knowledge. The example of profession are doctor, lawyer, accountant, engineers. Okay, doctor is a profession. Doctor is seeing their clients. Okay, accountant, lawyer, doctor, patient, lawyer, client, accountant or engineer. Okay, the profession charges professional fee. Okay, in profession, प्रोफेशनल फीस. ओके, इन बिजनेस व्हाट कम्स, बिजनेस में आता है प्राइजेज, बट इन प्रोफेशन व्हाट कम्स फीस फ्रॉम द देयर clients for services rendered to each profession has membership of professional body. Okay, तो मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था. सी नाउ द बेसिक फीचर ऑफ प्रोफेशनल आर एज फॉलो. ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, इनकी अपनी क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज बॉडी होती है. फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. फॉर प्रोफेशन वी नीड द फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. मतलब इट मीन्स इफ यू वांट टू बिकम डॉक्टर, यू मस्ट यू हैव टू डू यू हैव पास द MBBS डिग्री. फॉर LLB, ठीक है, इफ यू हैव टू बिकम द लॉयर, you have to take the degree of LLB. For accountant, you must have the CA, chartered accountant, degree of chartered accountant. So it means without this professional knowledge or professional degree, you cannot become the professional. Okay, so for this you have to become the, if you want to become the professional, you must possess these degrees. Okay, in which various field you wants to go. Okay, in medical line, if you want to become doctor, you have to be MBBS. If you want to become lawyer, so these are some examples. Okay, now see प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशन. देखो, इन एवरी प्रोफेशन जो इनको गाइड करता है, जो इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है, उसको बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी और एसोसिएशंस. ओके, फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोफेशन, द extensive of recognized professional body is must. Okay, a list of prominent professional body in India is given below. देखो, there are some list. Okay, जैसे मेडिकल के लिए क्या है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. लीगल के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, बार काउंसिल मीन्स कि लॉयर्स, फॉर डॉक्टर्स. ओके, फॉर अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. फॉर कंपनी सेक्रेटरी, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी बनता है तो द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया. कॉस्ट अकाउंटेंसी, इंडियन कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. दीज ऑल आर द प्रोफेशनल बॉडी. ये क्या है, प्रोफेशनल बॉडी हैं. ओके, ये प्रोफेशनल बॉडी का काम क्या है, जो फील्ड है, प्रोफेशन है, इनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाना. पर्टिकुलर जो जिस फील्ड की से रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडी है, उनके लिए क्या बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन. ओके, नाउ सी, उसके बाद देखो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मीन्स कि the membership of professional body is compulsory in the case of profession. For example, a chartered accountant must be a member of the Institute of Chartered Accountant of India. In order to become membership, one must clear the examination conducted by the institute and undergo the required training. Okay, तो it means restricted entry का मतलब क्या हो गया, हर कोई एंट्री नहीं कर सकता. If he want to become the CA, so he must pass the chartered accountant, ठीक है, course. Okay, if he want to become the lawyer, he must pass the LLB, Bachelor of Law, LLB, MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of. If you want to become lawyer, okay, अगर डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS करना पड़ेगा. लॉयर बनना है तो अगर आपको क्या बनना पड़ेगा, LLB करनी पड़ेगी. अगर आपको चार्टर अकाउंटेंट बनना है तो यू हैव टू क्लियर द. तो इट मीन्स कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. हर कोई क्या नहीं बन सकता, इस फील्ड से पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं बन सकता. ओके, नाउ सी नेक्स्ट है इथिकल कोड. ओके, देयर उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स हाउ टू बिहेव. ओके, दैट कंटेन्स नॉर्म्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशन. कि कोड ऑफ कंडक्ट मतलब इनका अपना इथिकल कोड होता है. इथिकल कोड मीन्स कि हाउ दे विल बिहेव. कोड ऑफ कंडक्ट दैट कंटेन्स नॉर्म्स एंड बिहेवियर ऑफ मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशन. द कोड इज इन्फोर्स बाय द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल बॉडी. ओके, अब वो कोड उनके लिए कौन सेट करता है, प्रोफेशनल बॉडीज. It can suspend or cancel the membership of member found guilty violating the professional code of conduct. Okay, or if that person is not following the code of conduct, तो उसकी membership को भी क्या किया जा सकता है, cancel कर जाता है. अगर got it.
मेंबरशिप को कैंसिल का मतलब क्या है कि अगर कोई डॉक्टर है उसका अपना प्राइवेट क्लिनिक है, अगर वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडियाज़ की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है तो उसका डॉक्टर की डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। अगर कोई लॉयर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, जो उसके रूल्स और रेगुलेशन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो एडवोकेट्स के लिए, लॉयर्स के लिए जो वो बने हुए हैं, ठीक है, एडवोकेट्स के लिए जो बने हुए हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करता तो उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ओके, गॉट इट। तो इट कैन बी सस्पेंडेड और द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर इफ द फाउंडर गिल्टी। गॉट इट। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है सर्विस मोटिव। ओके, अ प्रोफेशनल गिव टॉप प्रायोरिटी प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दियर क्लाइंट। ओके, सर्विस मोटिव, इनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस मोटिव। जैसे बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? अर्निंग द प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग द कस्टमर वांट। प्रॉफिट कमाना किसके द्वारा? कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई करके। लेकिन इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द सर्विसेज। इनका मेन मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड द सर्विसेज, देन ही रिसीव्स द फीस, तब उसको क्या मिलती है? फीस मिलती है। ओके, अ प्रोफेशनल गिव्स अ टॉप प्रायोरिटी टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट इन ऑर्डर टू मेंटेन हाई स्टेटस ऑफ प्रोफेशन। ही डज नॉट ब्लाइंडली रन आफ्टर मनी एंड सेल्फिश गेन। ओके, अ प्रोफेशनल चार्ज रीजनेबल फी फॉर द सर्विसेज। ही चार्ज द फी फॉर हिज सर्विसेज। वो अपनी सर्विसेज से क्या लेता है? एक रीजनेबल फीस लेता है। गॉट इट। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके पास एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज। दिस इज अ थर्ड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी में आता है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स, और यू कैन से सर्विस। सर्विस जैसे आपने सोचा गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सेक्टर में सर्विस, इट मीन्स वर्किंग अंडर द सम एम्प्लॉय के अंदर काम करना इज अ सर्विस। ओके, तो देखो अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयमेंट। ओके, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज सर्विस। अ पर्सन इज सेड टू बी एम्प्लॉयमेंट इफ ऑफ एन एंटरप्राइज व्हेन ही अंडरटेक टू रेंडर द पर्सनल सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, कि इसमें एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि द पर्सन इज गिविंग द सर्विसेज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसके बीच? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच। एम्प्लॉयर मीन्स हु इज गिविंग द सर्विस, मतलब अंडर विच द पर्सन इज डूइंग द सर्विसेज। ओके, एम्प्लॉय मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग हिज सर्विसेज। तो उन दोनों के बीच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय दे आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट रूल्स। ओके, एम्प्लॉयर कौन है? गवर्नमेंट है, वो उनके, ठीक है। इन रिटर्न ऑफ द सर्विसेज द एम्प्लॉय गेट्स वेजेस और सैलरी। ओके, और अलाउंसेस, बोनस एंड अदर बेनिफिट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सर्विस में क्या होता है बच्चे? सर्विस में जैसे कि बिजनेस में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में क्या मिलता है? फीस मिलती है। सर्विसेज में क्या मिलता है? सर्विसेज में मिलता है सैलरी और वेजेस। salary or wages, you can say salary, the person is getting the fixed salary. If he get the wages also, allowances, bonus and other benefits. Okay, the employer may be government or a government undertaking और प्राइवेट फर्म। एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड अंडरटेकिंग, या प्राइवेट फर्म, कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर में। ओके, इवन अ प्रोफेशनल क्वालिफाइड पर्सन सच एज लॉयर कैन ज्वाइन एज एन एम्प्लॉय विद सम ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इन रिटर्न और स्पेसिफिक सैलरी। ओके, तो एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है बच्चे की, जो प्रोफेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड हिज सर्विसेज अंडर द एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन, जो किसी ने प्रोफेशनल, मतलब सपोज कोई लॉयर किसी कंपनी में काम कर सकता है, ही गिव द कंसल्टेंटी लीगल सर्विसेज। वहाँ उसको क्या मिल सकती है? ही विल गेट द सैलरी। ओके, कोई लॉयर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी में सर्विस कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट कर सकता है, वेयर ही विल गेट द फिक्स सैलरी। ओके, लेकिन हियर दैट सीए विल बी कॉल्ड एम्प्लॉय। यहाँ पर सीए क्या कहलाएगा? एम्प्लॉय। वहाँ पर वो लॉयर क्या कहलाएगा? अगर कोई लॉयर किसी कंपनी में काम करता है, वहाँ अपनी लीगल सर्विसेज और प्रोवाइड करता है, तो वहाँ पर वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, वहाँ पर क्या कहलाएगा? वो ही इज़ द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी। ओके, even a professional qualified person such as lawyer can join an employee with some organization and work return on a specific salary and other benefit on prerequisite. Okay, तो now see, जैसे कोई डॉक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, वहाँ पर वो प्रोफेशन नहीं, वहाँ पर वो क्या होते हैं? एक एम्प्लॉय होते हैं।
वहाँ पर क्या होते हैं, वो एक एम्प्लॉय होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा डॉक्टर्स रहते हैं, तो वहाँ पर वो डॉक्टर क्या है, प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनल तो हैं वो, लेकिन बट दे आर एम्प्लॉय देयर, वहाँ पर वो क्या है, काम एम्प्लॉय है। हाँ, अगर किसी का कोई प्राइवेट क्लिनिक मीन्स कि प्राइवेट बाहर में वो प्रैक्टिस करता है, तब वो वहाँ पर क्या है, एक प्रोफेशनल है, वहाँ पर वो फीस लेता है, वहाँ पर वो क्या लेता है, फीस। ओके, now see the distinct feature of employment or services are as follow. Employment commences on joining of services of another person on a firm, such as person on a firm is known as the employer. उसको क्या बोलते हैं, employer. इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग द ड्यूटी असाइन बाय, वो सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा एम्प्लॉय विच आर असाइंड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के द्वारा क्या होंगी, असाइन होगी। इट डज नॉट नीड एनी, यहाँ पर कोई पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। क्या नहीं जरूरत होती यहाँ पर, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। द एम्प्लॉय गेट्स वेजेस, सैलरीज एंड रिलेटेड बेनिफिट एंड रिवॉर्ड ऑफ द सर्विसेज। उसको क्या मिलता है, ही गेट द वेजेस और सैलरीज और रिलेटेड बेनिफिट एज द रिवॉर्ड ऑफ हिज सर्विस। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू अनदर, एम्प्लॉय को क्या नहीं कर सकते आप, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। एम्प्लॉयर कैन ऑल्सो फॉलो द रूल्स एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को क्या फॉलो करने पड़ेंगे, द रूल्स और रेगुलेशन विच इज मेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉय को ऑल द रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जो रूल्स और रेगुलेशन किसने बना रखे, एम्प्लॉयर ने बना रखे। देयर आर नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशंस टू गेट एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल डिपेंड अपॉन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द, और जैसे कि प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेशल क्या कहते हैं, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अ सर्विस ही नीड्स द एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू अ सर्विस इट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पेसिफिक जॉब। गॉट इट। नाउ यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, तो स्पेशलाइज एजुकेशन फॉर बिजनेस, इसको पढ़ लेना इजीली। ठीक है, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ओके, ठीक है फिर।